ઓકે તો લાસ્ટ લેક્ચર્સ જે આપણે લીધા છે અને લાસ્ટ લેક્ચરમાં દેટ મીન્સ અત્યાર સુધીના લેક્ચર્સમાં પોઈન્ટ આપણે એસએફપીએમ ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યા ખાલી પોઈન્ટ લોડથી સિંગલ પોઈન્ટ લોડ આફ્ટર દેટ આપણે બે પોઈન્ટ લોડ લીધા યુડીએલ લીધું યુડીએલ પ્લસ પોઈન્ટ લોડ યુડીએલ પ્લસ 2 પોઈન્ટ લોડ રાઈટ આફ્ટર દેટ આપણે ચેન્જ કર્યા છે ટાઈપ ઓફ બીમ એમાં કેન્ટિલીવર લીધું અને ઓવરહેંગિંગ પણ લીધું રાઈટ ઇન શોર્ટ લોડ પણ ચેન્જ કરીને જોયા અને બીમના ટાઈપ્સ પણ ચેન્જ કરીને જોઈ લીધા તો હવે કંઈક નવું આવે છે અને એ છે તો કે મોમેન્ટ ઓર વી કેન સે દેટ કપલ અને મોમેન્ટ આપેલી છે બીમ ઉપર જ તો એના માટે એસએફબીએમ ડાયાગ્રામ કેવી રીતના ડ્રો કરવાના તે જોઈશું રાઈટ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ ડ્રો એસએફ એન્ડ બીએમ ડાયાગ્રામ ફોર ધ ગિવન ફિગર ક્વેશ્ચન સેમ એસએફબીએમ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો બીમ મને અહીંયા આપેલો છે સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ જ છે એ થી બી પોર્શનમાં યુડીએલ છે 20 કિલોન્યુટન પર મીટરનો અને 2 મીટર ડિસ્ટન્સ છે બી ટુ સી કોઈ લોડ નથી પણ સી પોઈન્ટ ઉપર મોમેન્ટ આપી છે અને એ મોમેન્ટ ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં છે રાઈટ 30 કિલોમીટર ઇન્ટુ મીટર સેમ વે સી ટુ ડી પણ કોઈ લોડ નથી રાઈટ તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ જેવું દર વખતે કરીએ છીએ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ફાઇન્ડ રિએક્શન અને રિએક્શન ફાઇન્ડ કરીને એસએફ ડાયાગ્રામ ધ્યાનથી જોતા જઈશું તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જે યુડીએલ છે એને હું પોઈન્ટ લોડમાં કન્વર્ટ કરી દઈશ એટલે 20 into 2 40 kilonewton અને that will be act at center of 2 meter તો એ 40 કિલોન્યુટન અહીંયા કશેક એક્ટ થઈ જશે 2 મીટરના સેન્ટર પર એટલે અહીંયાથી આટલું 1 મીટર અને અહીંયાથી આટલું પણ 1 મીટર થશે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિએક્શન અને જે સપોર્ટ છે ત્યાં જે રિએક્શન લાગશે તો સપોર્ટ એ છે તો રિએક્શન વીએ સપોર્ટ ડી છે તો રિએક્શન વીડી કોઈ કેસે સર હું અહીંયા આરએ ને આરડી લખું ખાસે કોઈ જ વાંધો નહીં આવે રાઈટ તો રિએક્શન અને રિએક્શનમાં ફર્સ્ટ કન્ડિશન સિગ્મા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બટ ધેર ઇઝ નો હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ ધેર ધેટ મીન્સ નો હોરિઝોન્ટલ રિએક્શન રાઈટ તો હું એને ઇગ્નોર કરીશ અને સેકન્ડ કન્ડિશન લઈ લઈશ સેકન્ડ કન્ડિશન છે સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 vertical summation of all vertical forces is equal to 0 if the arrow upward direction then take it as positive and if the arrow is in downward direction then take it as a negative. So we will start from the point A when VA where VA is in upward direction therefore take it as a positive. Okay, so A થી લઈને આગળ જઈશું તો A થી આગળ જઈશ તો 40 kilonewton that is in downward direction that means minus 40 right further we will go through then B A to B એનો લોડ તો સર આપણે અહીંયા કન્વર્ટ કરી દીધો છે રાઈટ આ ક્યાં જઈશું તો C પોઈન્ટ પર સર અહીંયા મોમેન્ટ છે C પોઈન્ટ પર કોણ છે મોમેન્ટ છે અને અહીંયા કોણ છે વર્ટિકલ ફોર્સિસ તો આને વર્ટિકલ ફોર્સ કહેવાય ના કહેવાય તો અહીંયા લેવાનું જ નહીં રાઈટ તો હું આગળ જઈશ તો VD that is in upward direction therefore plus so plus VD is equal to 0 therefore एक इक्वेशन जनरेट हो रहा है VA plus VD is equal to 40 तो ये इक्वेशन तो यहाँ से जनरेट हो रहा है अब थर्ड कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो यूज करेंगे एंड दैट इज सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 राइट तो क्लॉकवाइज अगर है देन टेक इट एज अ पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव जैसा कि हम सभी एग्जाम्पल में करते थे कंसीडर ऑल मोमेंट सिग्मा मीन्स समेशन एम मीन्स मोमेंट समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0 पर कहाँ पर 0 होगा तो कोई एक सपोर्ट पर 0 होगा आइदर ए और डी कोई भी एक सपोर्ट हम कंसीडर कर सकते हैं तो यहाँ पर हम ले रहे हैं सिग्मा एम एट ए इज 0 तो हर एक फोर्स और हर एक रिएक्शन को लेकर आपको ए तक आना है यहाँ पर क्या है समेशन ऑफ ऑल मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मीन्स मोमेंट तो 40 into 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा
तो 40 इंटू 1, राइट। सर ये मोमेंट डायरेक्टली है। अब ये मोमेंट क्लॉकवाइज है तो प्लस करो और सिर्फ उसकी वैल्यू लिखो डायरेक्ट। अगर ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती तो हम माइनस करके यहाँ पे लिख देते, खत्म। सर यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये तो डायरेक्ट मोमेंट दी हुई है ना, तो मोमेंट दी है तो उसका समेशन ही तो करना है यहाँ पर हमें, राइट। तो प्लस और माइनस कुछ भी आता है, जो भी आता है वो करके हमें सिर्फ यहाँ पर इंडिकेट कर देना है, खत्म। ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये मोमेंट जनरेट हो रही है, ये तो मोमेंट डायरेक्ट गिवन है तो हमें डायरेक्ट लिख देना है सिर्फ। वी डी, आगे जाएंगे, वी डी और ए तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, और वी डी इस तरह से घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, therefore माइनस 5VD इज इक्वल टू 0। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0। 40 इंटू 1 40, 40 प्लस 30 70, और ये माइनस 5VD इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 5, therefore 5VD इज इक्वल टू 70। Therefore VD is equal to 70 divided by 5 करेंगे तो मुझे आंसर मिल रहा है 14। तो VD is equal to 14 किलो न्यूटन, राइट। और ये VD की वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे, ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो VA is equal to 40 minus 14। Therefore VA is equal to 26 किलो न्यूटन। तो ये था फर्स्ट स्टेप अपना, जिसमें हमें रिएक्शन फाइंड करते थे। अब जैसे ही अपने रिएक्शन फाइंड किए तो तुरंत यहाँ पर एक बेसलाइन बनाएंगे और एसएफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये बेसलाइन बनाई है मैंने। अब यहाँ पर VA की वैल्यू, सर VA तो अपवर्ड डायरेक्शन है और वैसे भी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बेसलाइन के ऊपर ही जाना है आपको। तो यहाँ पर मैं कहीं पर इंडिकेट कर रहा हूँ समथिंग हियर 26, राइट। और ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 26। ए से लेकर बी तक कितना फोर्सेस नीचे आ रहा है, तो सर 40 किलोन्यूटन है, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस 40 हो जाएगा, राइट। तो 26 माइनस 40 मतलब -14 मतलब कहीं यहाँ पर हो जाएगा ये 14। माइनस बेसलाइन से नीचे लिखा है तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, इट मीन्स इट इज अ नेगेटिव। यूटीएल है तो एसएफ में इंक्लाइन लाइन, खत्म। बी से लेकर सी तक कोई फोर्स नहीं है तो ये सीधा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा 14। सर सी पर ये तो मोमेंट है, मैं तो यहाँ पर शेयर फोर्स फाइंड कर रहा हूँ, राइट। तो इसको इग्नोर करेंगे और सीधा चले जाएंगे डी पॉइंट पर, तो ये 14 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर VD अपवर्ड डायरेक्शन और पॉजिटिव 14 है, ये -14 था प्लस 14 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से 0, ताकि बेस लाइन के नीचे का जो भी डायग्राम का एरिया है दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर ये नेगेटिव और इतना पोर्शन पॉजिटिव, तो ये हो रहा है एसएफ डायग्राम। ओके, अब मुझे BM डायग्राम ड्रॉ करना है, पर बिफोर दैट BM डायग्राम ड्रॉ करने से पहले यहाँ पर SF 0 आ रहा है, तो वो तो हमें पता था कि व्हेन SF इज 0 BM विल बी मैक्सिमम, सर ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इसके प्रोजेक्शन हम खींच लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, राइट। और ये जो पॉइंट है उसको हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने ये प्रोजेक्ट कर दिया। सर इतना डिस्टेंस कितना, सपोज x मीटर, ये नहीं पता है कितना है, तो अगर ये फाइंड करना है तो A से B तक का डिस्टेंस टोटल फोर्स कितना है 40 किलोन्यूटन। तो 40 किलोन्यूटन फोर्स के लिए कितना डिस्टेंस अवेलेबल है 2 मीटर। 2 मीटर तो इंक्लाइन लाइन कहाँ से शुरू हो रही है 26 से, तो 26 किलोन्यूटन के लिए कितना, अथवा x और x, therefore x is equal to 26 into 2 divided by 40, right। तो 26 into 2 divided by 40 करोगे
तो आपको x मिलेगा 1.3 मीटर, therefore x इज इक्वल टू 1.3 मीटर। तो ये x आ गया मेरे पास 1.3 मीटर। डन। अब मुझे मोमेंट फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे वो देखो अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप दैट इज BM कैलकुलेशन। अब जैसा ही लिख रहा हूं मैं BM कैलकुलेशन, तो वो साइन कन्वेंशन वाला पॉइंट दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट। कि पॉइंट के इस साइड वाला डेटा यूज करते हो तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और यहाँ पर वैसे वर्षा में मुझे लिखना ही नहीं है। ठीक है। तो और एक चीज ध्यान में रखो, जब भी ऐसा मोमेंट वाला एग्जांपल है, ठीक है, तो कोई भी एक ही साइड से सभी जगह की मोमेंट फाइंड करनी है, चाहे वो नज़दीक पड़े डी से। सी पॉइंट पर अगर मुझे मोमेंट फाइंड करनी है, तो वो डी से नज़दीक में है तो भी आप ए से ही फाइंड करो, अगर ये सबकी ए से फाइंड कर रहे हो तो। ठीक है। तो सबसे पहले तो मोमेंट एट ए is equal to 0 as well as moment at t is equal to 0। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, बोथ एंड ऑफ सिम्पली सपोर्टेड बीम मोमेंट विल बी 0, तो यहाँ पर दोनों है एंड जो है वहां पर मोमेंट 0 हो रहा है। अब ये x डिस्टेंस पर ये जो है पॉइंट, सपोज इसका पॉइंट का नाम हम ले रहे हैं p और q, राइट। तो मोमेंट एम क्यू, उसके लिए मैं इतना ही फिगर, इतनी ही फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेकर ये पॉइंट है क्यू पॉइंट, राइट। और ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का यहाँ पर आएगा रिएक्शन। रिएक्शन जो आ रहा है, रिएक्शन वी ए, और उसकी वैल्यू है समथिंग 26 किलोमीटर। इसका जो डिस्टेंस है वो x, दैट मीन्स 1.3 मीटर। ठीक है। और a से लेकर q तक तो UDL दिया हुआ है, और UDL की जो वैल्यू है वो है कुछ 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर पॉइंट लोड कितना एक्ट हो जाएगा, 20 इंटू 1.3, और वो 1.3 के सेंटर में एक्ट होगा, राइट। तो 20 इंटू 1.3 मतलब 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, और वो एक्ट होगा 1.3 के सेंटर में, राइट। तो 1.3 डिवाइडेड बाय 2, 0.65, 0.65 मीटर। अब Q पॉइंट पर मोमेंट फाइंड करनी है। पॉइंट के इस साइड वाला डेटा आप यूज कर रहे हो, तो पॉइंट के इस साइड वाली साइन कन्वेंशन यूज करनी है। Therefore मोमेंट एट Q इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको इस तरफ घुमा रहा हूँ, समझो 26 किलोमीटर फोर्स को लेकर हम Q पर जाना है हमें। ठीक है। तो ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.3 ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, तो 26 इंटू 1.3 पॉजिटिव। ये 26 इंटू 0.65 इस तरफ से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव, तो -26 इंटू 0.65। देयरफॉर मोमेंट एम क्यू इज इक्वल टू 26 into 1.3 minus 26 into 0.65, 16.9, 16.9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आंसर मिल रहा है मुझे मोमेंट एट क्यू का, एम क्यू का। ठीक है। अब मैं बी पॉइंट पर मोमेंट फाइंड करूंगा। इसको कहीं पर नोट कर लेते हैं पहले, ये मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। मोमेंट एम क्यू इज इक्वल टू 16.9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। और अब इसको भी निकालते हैं। ठीक।
तो मुझे अब चाहिए बी पॉइंट पर मोमेंट फाइंड करनी है। तो बी पॉइंट पर मोमेंट फाइंड करनी है तो ज़रूरत नहीं है आपको कि फिर से फिगर ड्रॉ करो, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर इतना पोर्शन पूरा कंसिडर करना है। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो हम ड्रॉ करते हैं फिगर मोमेंट एट बी। तो ये बी पॉइंट, यहाँ पर रिएक्शन है ए पॉइंट मतलब वी ए, और वो है 26 किलोमीटर ए पॉइंट। ठीक है, ए से लेकर बी तक तो जो यूडीएल उसका पॉइंट लोड तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है ऑलरेडी 40 किलोमीटर, तो मैं उसी को वापस दे रहा हूँ 40 किलोमीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये डिस्टेंस है 1 मीटर। राइट, पॉइंट के इस साइड वाला डेटा कंसीडर कर रहे हो आप, तो पॉइंट के इस साइड वाले साइन करो कंसीडर। ठीक है, तो मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 26 इंटू 2। यहाँ से ये 26 इंटू 2 कुछ इस तरफ से घूमेगा तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और ये 40 इंटू 1 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो -40 इंटू 1। तो जो आंसर मिल रहा है 26 इंटू 2 -40 इंटू 1 मतलब 12 किलोमीटर इंटू मीटर, 12 किलोमीटर इंटू मीटर। तो ये मोमेंट एम बी की वैल्यू मिल रही है मुझे 12 किलोमीटर इंटू मीटर। ठीक है, इसको भी यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कहीं पर, मोमेंट एम बी इज इक्वल टू 12 किलोमीटर इंटू। ओके, तो इतना पोर्शन अभी हमने कर लिया। सर ए पॉइंट मोमेंट जीरो, ए पॉइंट पर मोमेंट जीरो। ओके, ए पॉइंट पर मोमेंट जीरो। सर क्यू पॉइंट पर फाइंड करी, सर बी पॉइंट पर फाइंड करी, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर जीरो। सर सी पॉइंट पर तो આપેલી જ છે સર, બધા પોઈન્ટ પર મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરી લીધી આપણે, પણ અહીંયા તો એ લોકોએ આપી હતી, આપણે તો માંગી જ નથી ને, એ લોકોએ કેમ આપી? જો એ લોકોએ આપી છે તો હું અહીંયા બે મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીશ। ઓકે, સમજો ત્યાંથી કેમ બે મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીશ? एक मोमेंट सी पॉइंट पर जता पहला, जस्ट बिफोर एट पॉइंट सी। राइट, એટલે સપોઝ આ સી પોઈન્ટ છે અને હું એ જે મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીશ તે અહીંયા આગળ ફાઇન્ડ કરીશ। ધેટ મીન્સ હું सी पॉइंट पर पहुंचो જ નથી। राइट, अगर मैं सी पॉइंट पर नहीं हूं तो सी पॉइंट पर जो मोमेंट है 30 वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी मोमेंट जस्ट आफ्टर सी पॉइंट मतलब यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर हूँ एट दैट टाइम आई हैव टू कंसिडर दैट मोमेंट 30 किलोमीटर इंटू मीटर। मुझे 30 किलोमीटर मीटर वाली मोमेंट है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। कब? जब मैं सी पॉइंट के बाद तुरंत मतलब जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर। राइट, तो इसीलिए जब भी मोमेंट दी गई है आपको तो दो बार मोमेंट फाइंड करनी है, एक जस्ट बिफोर और एक जस्ट आफ्टर। अब समझ लो क्यों मैं यहाँ से गया हूँ। अगर मैं यहाँ पर मोमेंट फाइंड कर रहा हूँ और ये वाला पूरा डेटा ले रहा हूँ तो ये मोमेंट होगी, ये जस्ट बिफोर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो मोमेंट फाइंड करूँगा वो जस्ट आफ्टर हो जाएगी। पर अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो ये वाली मोमेंट जस्ट बिफोर हो जाएगी, ये जस्ट आफ्टर, मतलब कुछ कंफ्यूजन होने के चांसेस है। तो जब ऐसा हो रहा है कि कंफ्यूजन होने के चांसेस है तो उसी को निकाल दो और सभी मोमेंट एक ही तरफ से फाइंड करो। तो मैं सी पॉइंट के जस्ट बिफोर मोमेंट फाइंड कर रहा हूँ। राइट, तो मोमेंट एट सी जस्ट बिफोर, और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। सी पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट, यहाँ पर 26 किलोमीटर, यहाँ पर 2 मीटर, और 2 को ना करते हम 1 मीटर कंसीडर कर लेंगे ताकि ये इसके लिए भी ईजी हो जाए। यहाँ पर जो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हुआ है उसको भी यहाँ पे ले लेते हैं 40 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। राइट,
तो मोमेंट एट सी जस्ट बिफोर, उसके लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मोमेंट एट सी जस्ट बिफोर इज इक्वल टू पॉइंट के इस साइड वाला डेटा यूज कर रहे हैं हम, तो पॉइंट के इस साइड वाली साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, राइट। तो 26 इंटू दिस मच ऑफ डिस्टेंस 3 मीटर, और ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव, तो 26 इंटू 3, और ये 40 इस तरह से घूमेगा, यहाँ से इस तरफ से, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस हो जाएगा, -40 इंटू 2, राइट। तो मोमेंट एट सी जस्ट बिफोर, उसकी वैल्यू कुछ आ रही है मेरे पास 26 इंटू 3 -40 इंटू 2 -2 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब मुझे मोमेंट एट सी जस्ट आफ्टर फाइंड करना है, समझ लेना, मोमेंट एट सी जस्ट आफ्टर, तो ये तो आएगा ही आएगा, पर जस्ट आफ्टर मतलब 30 को कंसीडर करना है, क्लॉकवाइज है तो प्लस करके कंसीडर करना है, मतलब ये तो है ही है, +30 मतलब ये आंसर तो है, +30 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, राइट। और अगर आपको फिर से फिगर ड्रॉ करनी है तो यही फिगर ड्रॉ करेंगे, पर सी पर ये मोमेंट आपको कंसिडर करनी है, क्योंकि ये मोमेंट जो है वो मोमेंट कहाँ पर है, सी पॉइंट पर है, और मैं उसके जस्ट आफ्टर ले रहा हूँ, तो जब मैं जस्ट आफ्टर ले रहा हूँ तो वो मोमेंट वहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे वो कंसिडर करनी है। ये बिफोर था इसलिए हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते थे, राइट, पर जस्ट आफ्टर में तो वो होगी कंसिडर। तो सेम सारा पूरा पूरा सेम आएगा, 26 इंटू 3 क्लॉकवाइज प्लस 40 इंटू 2 माइनस और +30 करके हम फिर से लिखेंगे 26 इंटू 3 -40 इंटू 2 +30, तो आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव 28 किलो न्यूटन इंटू मीटर, मोमेंट एट सी जस्ट आफ्टर, राइट। अगर अगर सर हम ये सपोर्ट से लेते हैं तो सिंपल है, देखो BD इंटू 2 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और पॉइंट के इस साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, तो BD कितना है 14 इंटू 2 मतलब 28, तो वो तो 28 आ ही रहा है, पर यहाँ से जब हम करते थे तो जस्ट बिफोर आता था, और वही जस्ट बिफोर इस तरफ क्या आ गया है, जस्ट आफ्टर आ गया है, राइट। तो अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हो, पर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई भी एक साइड से ही करो कंसीडर, ठीक है। तो दोनों मोमेंट मेरे पास आ गई है, अब मैं BM डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। तो BM डायग्राम में यहाँ पर मैंने देखा है नेगेटिव मोमेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट है, और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मैं बेस लाइन को कुछ बीच में रखते हैं सेंटर तरीके से, क्योंकि ऊपर भी वैल्यू है नीचे भी वैल्यू है, पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है, ठीक है। तो ये बेस लाइन बनाई मैंने, ये ए पॉइंट मोमेंट 0 है, डी पॉइंट पर भी मोमेंट तो 0 ही है, अब ये क्यू पॉइंट पर कितने मोमेंट 16.9 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा 16.9, फिर बी पॉइंट पर 12 मतलब पॉजिटिव है तो ऊपर बेस लाइन से ऊपर 12, सी पॉइंट में जस्ट बिफोर में -2 है, समझ लेना -2 है मतलब बेस लाइन से नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। और ये 28 ऊपर है, इसको मैं निकालूंगा, ऊपर है तो 28 समथिंग यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ 28, ठीक है, और यहाँ पर 0, तो देखो ये तो दोनों सी पॉइंट पर ही मोमेंट है, तो सी वाले प्रोजेक्शन लाइन पर ही दोनों आएगा। अब ज्वाइंट कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो, यूडीएल है तो SF में इंक्लाइन BM में पैराबोलिक को, मतलब यहाँ से ये को यहाँ पर आएगा, अब कोई लोड ही नहीं है, SF हॉरिजॉन्टल है तो BM इंक्लाइन, अब फर्स्ट जस्ट बिफोर में क्या था -2, तो मुझे इसको यहाँ पर इंक्लाइन लाइन में लेना है, फिर ये वर्टिकल लाइन आ जाएगा अपना, ठीक है, और यहाँ से ये वापस से 0, राइट। तो ये है पॉजिटिव, ये भी पूरा पॉजिटिव, और इतना पोर्शन जो है वो नेगेटिव। अगर गलती से आपने इसको इसके साथ अटैच कर दिया
पहले यहाँ से -2 पर आ गया, या फिर यहाँ से 12 से 28 या -2 और इस तरफ, तो मतलब पूरा डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। ये हो रहा है पीएम डायग्राम। अच्छा सर, एक चीज जो आपने लास्ट लेक्चर में हमें बताई थी, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मतलब ये रहा, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। वो कैसे फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन? तो समझो कि सपोज ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, उसका मैं नाम दे रहा हूं आर। ठीक है, तो आर मतलब इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो समथिंग यहां पर होगा आर। ओके, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, इतना डिस्टेंस कितना है आर का, या फिर यहाँ से मैं एक्स ले रहा हूँ, इतना तो 2 मीटर है ही है मेरे पास, ए से लेकर बी तक का, इतना मैं एक्स ले रहा हूँ, या वाई या जेड कुछ भी ले सकते हैं। दैट मीन्स 2 + एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है वो आपको फाइंड करनी है, तो वो फाइंड कर लेते हैं अभी। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ओके, सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे अभी, इतनी फिगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं। आर पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट और ए पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू 26 किलोन्यूटन है, यहाँ पर 40 किलोन्यूटन का फोर्स जो कंसीडर हुआ है, 1 मीटर, 1 मीटर, और ये जो है दैट इज एक्स मीटर। ठीक है, तो मोमेंट एम आर समझ लो ध्यान से, मोमेंट एम आर क्या हो जाएगा, पॉइंट के इस साइड वाला डेटा है सर, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस 26 इंटू 1 + 1 2 + x, 26 इंटू 2 + x क्लॉकवाइज पर से, 40 इंटू 1 + x माइनस 40 इंटू 1 + x, 26 इंटू 2 52 प्लस 26x -40 एम आर की वैल्यू क्या है, जीरो। सर कैसे जीरो एम आर की वैल्यू, एम आर मतलब तो यही पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो ये पॉइंट तो जीरो ही होगा, राइट। तभी मोमेंट डेफिनेशन ही है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की व्हेन बीएम डायग्राम चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट बीएम विल बी जीरो, मतलब यहाँ पर मोमेंट जीरो ही है। ठीक है, तो 52 - 40 मतलब 12, और 26x - 40x, तो ये x वाला एक साथ में करेंगे तो 26 - 40 मतलब -14x, -14x इज इक्वल टू जीरो, तो ये -14x इस तरफ जाएगा, तो 14x इज इक्वल टू 12, therefore x is equal to 12 upon 14, therefore x is equal to 0.857 मतलब 0.86 मीटर। तो ये आ रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ये उसकी वैल्यू है 0.86, मतलब बी से लेकर 0.86। फिर से कोई बोलेगा सर ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा, हाँ हाँ है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ये, पर इतना डिस्टेंस तो अवेलेबल है मेरे पास ऑलरेडी, देखो 2 मीटर का। ठीक है, तो ये फिर से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, और फाइंड करोगे तो वो भी 2 ही आएगा, राइट, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पर ये अननोन था पॉइंट, तो ये हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 0.86 मीटर, बट नेचुरल है 1 से तो कम ही है, और 1 के अंदर ही है कुछ, तो वो तो 0.86 मतलब सही लगता है, राइट। तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।